welcome to our channel SR MBA Solutions. We will be uploading videos and content related to the business related topics, so make sure that you subscribe to our channel. So today I have taken brand extension as our topic of discussion. Brand extension, what exactly it is? It refers to the strategy of leveraging an established brand name to introduce new products and services in different markets or product categories. It involves using existing brand equity, recognition, and reputation to enter new markets and gain competitive advantage. कोई भी एक established brand जब नए products और services को launch करता है with the help of their brand equity, recognition and reputation, वो उसे नए मार्केट में एंटर करने में और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करने में हेल्प करता है. Brand extension is when a company uses one of its established brand names on a new product or a new product category. इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है एप्पल. एप्पल ने जो भी प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, दे हैव लॉन्च्ड इट विद द नेम ऑफ देयर ब्रांड, दैट इज़ एप्पल. एप्पल ने जब भी आईफोन, आई मैग, आईपॉड या एप्पल वॉच लॉन्च किया, तो दे हैव यूज्ड एप्पल एज देयर name to enter or to penetrate in the market. Company relies on brand loyalty of its current customer, which it hopes will make them more receptive to new offerings from the same brand. आपका करंट कस्टमर बेस आपकी कंपनी से बहुत अच्छे से कनेक्टेड है, दे नो योर कंपनी, उनको ज़रूरत नहीं है आपके ब्रांड के बारे में ज़्यादा कुछ समझने की. देयर बाय वो आपके ब्रांड को बहुत अच्छी तरीके से रिसेप्टिव रहेंगे. दैट मीन्स दे विल एक्सेप्ट योर ब्रांड एज इफ ये उनके लिए एक न्यू ब्रांड नहीं, बल्कि इट्स समथिंग दैट दे आर डूइंग इट फॉर अ लॉन्ग टाइम. If successful, a brand extension can help a company reach new demographies, expand its customer base, increase sales, and boost overall profit margins. एक सक्सेसफुल ब्रांड एक्सटेंशन स्ट्रैटेजी कंपनी को न्यू डेमोग्राफीज, नए कस्टमर्स, इंक्रीज सेल और बूस्टेड प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिलता है. Next is the examples. So I have taken two examples from each brand, that is international and Indian brands, so that you have a clarity. Now we have Coca-Cola from the international brands. Coca-Cola, it's very much known for its carbonated soft drinks, and also they have extended their products with the bottled water, that is Dasani. Then they have their sports drink, Powerade, and ready to drink coffee as well. कोका कोला इंडिया में नॉर्मली उसके सॉफ्ट ड्रिंक्स के लिए ही फेमस है, बट ग्लोबली दे हैव established their brand with their other brand extensions or other brand products. Then there is Apple. Apple is a known American multinational technology company, and they have successfully extended their brands with the products like iPod, iPhone, iPad, Apple Watches, and other as well. Then there are Indian brands. टाटा का बहुत ही नोन ब्रांड है, दैट इज़ टाइटन, विच इज़ नोन फॉर इट्स वॉचेस, बट उन्होंने भी अपने नए प्रोडक्ट कैटेगरीज लॉन्च किए हैं. दैट इज़ टाइटन का आईवेयर ब्रांड, दे हैव देयर ओन ज्वेलरी ब्रांड, देन दे हैव देयर ओन फ्रेग्रेंस ब्रांड, that is Titan Eye Plus, Tanishq and Skin. This has helped them in becoming a leading player in multiple lifestyle segments. Then we have Amul. Amul, of course, it's known for its dairy products, and in India they have huge customer base, and they not only are into milk and dairy products, but they also offer ice creams, chocolates, butter, ghee, and various other packaged food items. So उनका भी बहुत अच्छा brand extension strategy रहा है. And why is it so? Because they have diversified their product portfolio. उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें इंक्लूड की हैं जो कि मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट से रिलेटेबल है भी नहीं. Now how brand extension works and what exactly are the advantages. So we all know that every other strategy has its own pros and cons, so we'll be discussing there.
द फर्स्ट वन इज़ लीवरेज एक्सिस्टिंग ब्रांड इक्विटी। ब्रांड एक्सटेंशन कंपनी को अलाउ करती है अपने स्टैब्लिश ब्रांड नेम, अपनी इक्विटी, अपना रेप्यूटेशन और कस्टमर के ट्रस्ट जो उनका ऑलरेडी है उस पर एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने में। इससे क्या होगा कि आपकी जितनी अच्छी पॉजिटिव एसोसिएशन रहेगा, इमोशनल कनेक्शन रहेगा कस्टमर के साथ, उतना ही ज़्यादा आपका ब्रांड इक्विटी इंक्रीज़ होगा और आप कोई भी नया प्रोडक्ट अगर मार्केट में लेके आएंगे तो वो आपका कस्टमर बहुत अच्छे से उसको एक्सेप्ट करेगा। नेक्स्ट इज़ कॉस्ट एफिशिएंसी। किसी भी नए ब्रांड को लॉन्च करना या किसी भी नए ब्रांड को इस्टेब्लिश करना फ्रॉम स्क्रैच रिक्वायर्स अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मनी। आपको बहुत सारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है जस्ट टू बिल्ड ब्रांड अवेयरनेस, क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश करने में, कस्टमर का ट्रस्ट गेन करने में। देयर बाय ये सारा कॉस्ट रिड्यूस हो सकता है अगर आपका ब्रांड एक्सटेंशन होता है। वाई इज़ इट सो? एक एस्टैब्लिश ब्रांड नेम या एक नोन ब्रांड नेम will help you to cut cost in marketing, advertising and promotional activities. आपको उतनी ही कम मार्केटिंग करनी पड़ेगी just to build brand awareness. Next is faster market acceptance. A well executed brand extension will help you to gain more and more customer and also जो आपका current customer base है वो आपके प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करेगा, दैट टू वेरी इजीली। आपको ज़रूरत नहीं है अपने प्रोडक्ट को जाके मार्केट करने की, आपका कस्टमर ही आपके ब्रांड को मार्केट करेगा, वर्ड ऑफ माउथ। इंक्रीज कस्टमर बेस। ब्रांड एक्सटेंशन हेल्प करता है आपकी कंपनी को नए नए कस्टमर सेगमेंट्स को अट्रैक्ट करने में। जितने ज़्यादा आप अपने प्रोडक्ट में डाइवर्सिफिकेशन लेके आएंगे, जितने ज़्यादा आप अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपका कस्टमर बेस इंक्रीज़ होगा। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है आई वुड से स्मार्टफोन्स। वाई? बिकॉज वो हर कुछ टाइम के बाद अपने प्रोडक्ट्स में, अपने इस्टेब्लिश्ड जो उनके प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में, उन्हीं में वो कुछ ना कुछ ऐड करते रहते हैं, जिसकी वजह से आपका न्यू कस्टमर बेस भी इंक्रीज़ होता है और जो एग्जिस्टिंग है वो तो खैर आपके ब्रांड को और भी ज़्यादा प्रमोट करते हैं। नेक्स्ट इज़ द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ब्रांड एक्सटेंशन कैन हेल्प अ कंपनी टू गेट दिस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। वाई सो? ब्रांड की जितनी अच्छी स्ट्रेंथ होगी, जितना अच्छे से वो अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। एप्पल क्यों बाकी स्मार्टफोन से डिफरेंट है? it's all because of their unique they attract ऐसा कस्टमर बेस जो कि नोन है फॉर लग्जरी, या कह सकते हैं कि उन्हें कुछ ऐसे फीचर्स चाहिए जो और स्मार्टफोन्स नहीं देते हैं, फॉर इंस्टेंस द प्रिवेसी थिंग। तो वो कस्टमर जो लग्जरी को अफोर्ड करते हैं, दे वोंट इवन लुक एट अदर ब्रांड्स अदर देन एप्पल, तो उनके लिए एप्पल इज़ द ओनली ऑप्शन। देयर बाय जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एप्पल को है जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स लग्जरियस अपीयरेंस एंड जो भी वो चीज़ें उन्हें सर्व कर रहे हैं उससे, इट हेल्प्स देम टू क्रिएट अ गुड ब्रांड इमेज और कस्टमर लॉयल्टी को गेन करने में। नेक्स्ट इज सिनर्जी एंड क्रॉस सेलिंग अपॉर्चुनिटी। Brand extension with the related product categories can increase synergies and cross-selling opportunity. एक पर्टिकुलर कंपनी अगर वो कुछ एक प्रोडक्ट ही बेच रही है तो शायद से वो इतनी ज़्यादा सक्सेस नहीं कॉन्कर कर सकती है, लेकिन अगर कोई कंपनी बहुत सारे अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करके और कुछ नए सेगमेंट्स में जाए और फिर उसके बाद कस्टमर को सर्व करे, it will help them to increase the customer loyalty and also their revenues. इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जैसे कि बहुत सारे ऐसे पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स बनाते हैं कंपनी, एंड वो कंपनी अगर स्किन केयर, हेयर केयर या ब्यूटी प्रोडक्ट्स में अपने आप को डाले तो वो बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स को भी सर्व करेगी जो इन सब में इंटरेस्टेड हैं।
नेक्स्ट इज ब्रांड विजिबिलिटी एंड रिकॉल। एक सक्सेसफुल ब्रांड एक्सटेंशन हेल्प करता है कंपनी की ब्रांड विजिबिलिटी और उसकी रिकॉलिंग पावर को इंक्रीज करने में। नेक्स्ट वी हैव इज द डिसएडवांटेजेस एंड द क्रिटिसिज्म ऑफ ब्रांड एक्सटेंशन। क्यों ब्रांड एक्सटेंशन के लिए आपको डिसएडवांटेजेस पढ़ने हैं? बिकॉज यू सी एवरी अदर स्ट्रैटेजी हैज़ इट्स ओन प्रोज एंड कॉन्स, एंड कोई भी चीज़ अगर सही है तो कहीं ना कहीं वो कुछ गलत भी करती है। द फर्स्ट डिसएडवांटेज इज़ ब्रांड डाइल्यूशन। वन ऑफ द सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ ब्रांड एक्सटेंशन इज़ ब्रांड डाइल्यूशन। अगर आप एक कंपनी को देखें जो कि नए प्रोडक्ट्स लॉन्च तो कर रही है, बट उसके वो प्रोडक्ट्स जो हैं वो उसकी कोर वैल्यूज़, उसकी पोजीशनिंग, उसके टारगेट ऑडियंस के साथ अलाइन ही नहीं करता। ये कह सकते हैं कि वो जो प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं वो आपके कस्टमर के लिए it's not aligned to what they are known for. It will create a confusion in customer, or this will weaken their association with the original brand, thereby it will damage the reputation. आपका कस्टमर आपके ब्रांड के लिए ही आपको ख़रीदता है, देयर बाय अगर आप कुछ ऐसी चीज़ लेके आते हैं जो कि आपके कस्टमर के लिए बिल्कुल ही अलग है, दैट मीन्स वो उसे एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ ब्रांड एसोसिएशन। इफ़ अ न्यू प्रोडक्ट और सर्विस फेसेस इश्यूज और रिसीव्स नेगेटिव फीडबैक, it can definitely create negative perception to the parent brand. नया प्रोडक्ट अगर कुछ गलत इश्यूज़ लेके आता है या कुछ ऐसे नेगेटिव फीडबैक्स आते हैं, ये आपके पेरेंट ब्रांड को भी इफ़ेक्ट करता है। कैनिबलाइजेशन। ब्रांड एक्सटेंशन काफ़ी बार आपके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को कैनिबलाइज करता है। वो व्हाट इट मीन्स इज़ वो आपके एग्जिस्टिंग ब्रांड को खा जाता है। बहुत बार हमने देखा है कि कुछ ऐसे ब्रांड्स होते हैं जो आते तो हैं लेकिन उनकी वजह से बाकी जो आपके एग्जिस्टिंग ब्रांड्स हैं वो ख़त्म होने लगते हैं, और इससे आपके ब्रांड एक्सटेंशन पर काफ़ी नेगेटिव असर आता है। कंज्यूमर कन्फ्यूजन। इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू एक्सटेंशन that is not clearly connected to the existing brand, it definitely lacks a clear value proportion. It will confuse your customer. नया ब्रांड, नया प्रोडक्ट अगर आपके कस्टमर को नहीं आपसे कनेक्ट कर पाता है, इट विल क्रिएट अ कन्फ्यूजन, और फिर आपको अपना ब्रांड एक्सटेंशन जो है वो किसी भी हद तक सक्सेस नहीं देता है। इंक्रीज कॉम्प्लेक्सिटी एंड मैनेजमेंट चैलेंजेस। बहुत बार ऐसा होता है कि ब्रांड एक्सटेंशन करने में, ये स्ट्रैटेजी को फुलफ़िल करने के लिए आपके बहुत सारे डिपार्टमेंट्स का सपोर्ट चाहिए होता है। तो हर एक डिपार्टमेंट अगर आपके ब्रांड एक्सटेंशन में हेल्प आउट कर रहा है, दैट मीन्स दे हैव देयर ओन माइंडसेट, दे हैव देयर ओन चैलेंजेस, दे हैव देयर ओन कॉम्प्लेक्सिटीज़ दैट दे हैव टू वर्क ऑन। और अगर वो सीक्वेंशली, या कह सकते हैं कि अगर वो ढंग से कोऑपरेट ना करें, तो ये भी आपके ब्रांड एक्सटेंशन को फेल कर सकता है। क्वालिटी परसेप्शन। क्वालिटी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट वाइल यू इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट, और अगर क्वालिटी ही नहीं होगी, दैट मीन्स द कस्टमर वोंट बाय योर प्रोडक्ट. This will decline the trust that they have and the credibility that the company has. Limited market opportunities. Brand extension may have limitation in terms of potential market opportunities. बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो हर टारगेट ऑडियंस के हर ऑडियंस के लिए नहीं होते हैं, देयर बाय आपको एक टारगेट ऑडियंस सेट करना पड़ता है, और अगर यू लैक इन अंडरस्टैंडिंग योर ऑडियंस, तो वो आपके मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ को बहुत लिमिटेड बना देता है. नाउ दीज वर द डिसएडवांटेजेस. वी आर डन विद both advantages and disadvantages. Now we'll look at the overview of what exactly we have done up till now. Brand extension, it's the introduction of a new product that relies on the brand name or the reputation of established brand.
एक इस्टेब्लिश ब्रांड के अम्ब्रेला में जब आप नए प्रोडक्ट्स को लेके आते हैं, उसे लॉन्च करते हैं, दिस स्ट्रैटेजी इज़ नोन एज ब्रांड एक्सटेंशन. Brand extension works when the original and new product share common qualities or characteristics. जब भी आपका पेरेंट प्रोडक्ट या पेरेंट ब्रांड और आपका न्यू प्रोडक्ट आपके साथ आपके कुछ कॉमन क्वालिटीज़ शेयर करता है, तभी वो सक्सेसफुल रहता है. Brand extension fails when the new product is unrelated to original and it's been seen as a mismatch or it creates even negative association. अगर आपका ब्रांड आपके नए प्रोडक्ट के साथ मैच नहीं करता, इसकी वजह से कन्फ्यूजन क्रिएट होता है और समटाइम्स इट लीड्स टू नेगेटिव एसोसिएशन एज वेल. एक सक्सेसफुल ब्रांड एक्सटेंशन allows companies to diversify their offerings and increase market share. कोई भी सक्सेसफुल ब्रांड एक्सटेंशन आपकी कंपनी को डाइवर्सिफिकेशन करने में हेल्प करता है, नए प्रोडक्ट्स लाने में, नए प्रोडक्ट सेगमेंट्स लाने में हेल्प करता है. So that is all for today, guys. I hope you all would have liked this content, and if you want us to continue creating such content, and we just want to give you certain things that will help you out in your curriculum, and also in getting you known to what exactly businesses and business related topics. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, then please there at the bottom we have that thumbs up button, so please like it and share it, and also please सब्सक्राइब टू आवर चैनल. कमेंट डाउन बिलो कि आपको कौन कौन से नए टॉपिक्स हैं जो आप चाहते हैं कि हम कवर करें. प्लीज़ लेट अस नो, एंड ऑल्सो थैंक यू सो मच. विल मीट अगेन विद अनदर टॉपिक. बाय.